Good morning, students. Welcome again to my class. We were learning chapter number 6, Force, Work and Energy. In this chapter, we have learned about what is force. We have also learned the types of force, that is 5 types of force, that is muscular force, mechanical force, elastic force, gravitational force and frictional force. These 5 types of forces we have learned in types of force. We have also learned about work. What is work, when work is done and when work is not done. Now today we will read about simple machines. Do you know what are machines? Machines are some tools we are using to do some work. जब हम कोई काम करने में कुछ tools का use करते हैं, then they are called as machines. And simple machines, what are simple machines? When we have to use some tools to do some work, जब हम कुछ tools का use करते हैं कुछ काम करने में जो हमारे वर्क को और भी easy बना देते हैं. In daily life, we are using some tools. So these tools are called as simple machines. जो tools we are using to do some work which makes our work easy and which makes our work do faster, we are calling them simple machines. For example, in your textbook it is given, we use a knife to cut an apple. You know that. How can you cut an apple? You can cut with knife. So it is cut into shapes. आपको एक प्रॉपर एप्पल जो है वो आपको नाइफ से आप उसको कट कर सकते हो. उसको तोड़ के अगर आप खाओगे तो वो एप्पल तो होगा लेकिन उसका जो शेप है वो भी चेंज हो जाएगा, है ना. देन यू आर यूजिंग नाइफ to cut an apple. Mango also you can cut. You are cutting watermelon, you are cutting radish, carrot, different types of vegetables we are cutting with knife. It makes our work easier. Knife make our work easier. Here knife is a tool or a simple machine. जो knife होता है वो क्या कहलाता है यहाँ पर? Knife से हम कट करते हैं, then a knife is called a tool और we are calling a simple machine. साधारण सा, है ना. बड़ी बड़ी मशीनें अलग होती है. बड़ी मशीन्स जो होती हैं वो कहाँ पे यूज़ होती हैं? वो फैक्ट्रीज में होती है और भी बहुत सारी जगहों पर बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज़ होता है. बट वी आर यूजिंग सम टूल्स to make our work easy. That tools are called as simple machines which we are using in our daily life. Simple machines help us to do. Simple machine क्या करती है? किस में help करती है? It also help us to do our work faster. अगर आप हाथ से सब्जियां काटने लगोगे तो क्या होगा? बहुत टाइम जाएगा उसमें. When you are using knife, then with knife you can cut the vegetables faster. So simple machines help us to do our work faster. Simple machine से हमारा वर्क जल्दी होता है. Okay. To do simple machines help us to do work with less force or effort. जो सिंपल मशीन्स होती हैं उसमें आपको लेस फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है कट एन एप्पल विथ नाइफ. अगर आप उसको तोड़ने की कोशिश करोगे देन यू हैव टू अप्लाई मोर एफर्ट, मोर फोर्स you have to apply. But with knife, only with less effort and less force you can cut the apple or different types of vegetables. Simple machines also help us to change the direction of force used. तो सिंपल मशीन से क्या हो जाता है? जो डायरेक्शन होता है फोर्स का जिसको हम यूज कर रहे हैं उसको भी चेंज करने में हेल्प मिलती है. Some examples of simple machines are, in your textbook various examples are given of simple machines, that are lever,
pulley, wheel and axle, then inclined plane, the screw and wedge. So here you can see the picture. First one is given lever, then second one is given pulley, then wheel and axle, then inclined plane, screw, wedge. These are the examples which are given in your textbook of simple machines. We will read about these machines one by one. So first of all, we will read about lever. Here you can see the examples of lever, pulley, screw, inclined plane, wedge, wheel and axle. Here there are given the examples of these simple machines. We will read these examples also one by one. First of all, we will read about lever. So, do you know what is a lever? A lever is used to lift weights. जो लीवर होता है वो किस में यूज होता है? वजन को उठाने में, लिफ्ट करने में, लिफ्ट वेट्स. देन टू कट थिंग्स, चीज़ों को काटने में. एंड ओपन लिड्स, ढक्कन को खोलने में. ये लीवर का यूज किस किस चीज़ में होता है? टू लिफ्ट वेट्स, देन टू कट थिंग्स एंड टू ओपन lids. Here examples are given in your book that are hammers and bottle openers. These are the examples of lever. What is the meaning of hammer? Hammer मतलब होता है हथौड़ा. And bottle openers, आपको पता है कैन जो होती है उसके ऊपर का ढक्कन जो खोलने के लिए होता है उसको हम बोलते हैं bottle openers. So these are the two examples of lever. A small child lifts up a heavier child on a seesaw. जब आप सीसो पर बैठते हो तब क्या होता है? जब आप ऊपर जाते हो तो सामने वाला क्या होता है? नीचे होता है. और जब आप नीचे आते हो तो सामने वाला कैसा हो जाता है? ऊपर हो जाता है. दैट इज ए सीसो, है ना. बैलेंस बना हुआ होता है दोनों में. तो जो स्मॉल चाइल्ड होता है वो जो हैवियर चाइल्ड को क्या करता है? ऊपर लिफ्ट कर देता है. इट इज देन दैट सीसो, व्हेन यू आर गोइंग टू अ पार्क और गार्डन, देयर आर डिफरेंट, बहुत सारे झूले और बहुत सारी चीज़ें. जैसे आप कहाँ जाते हो? आप मारुति नंदन पे जाते हो तो वहाँ पर झूले भी लगे हुए, स्लाइड्स भी है ना. तो जो सीसो होता है, सीसो तो नहीं लगा है वहाँ पर, लेकिन आप लोगों ने सभी ने देखा होगा व्हाट इज सीसो. जब आप बैठते हो दोनों साइड पर एक पटिए जैसा होता है ना, लकड़ी का, वुडन का भी हो सकता है. फिर उसमें आप एक दोनों तरफ एक एक बैठ जाता है. फिर वो क्या होता है? ऊपर नीचे बैलेंस की तरह होता रहता है ना. दैट सीसो is also an example of lever. Okay, that seesaw is also an example of lever. Here you can see different examples of a lever. Scissors to cut nutcracker, नट्स को तोड़ने के लिए जब हम यूज़ करते हैं, है ना. वॉलनट्स को तोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं सीजर्स को. कटिंग में पेपर कटिंग, क्लॉथ कटिंग. नेल क्लिपर, नेल क्लिपर आप किस में यूज़ करते हैं? यू आर यूजिंग टू कट योर नेल्स. सो यू नो द डेफिनेशन ऑफ लीवर, दैट ए लीवर is used to lift weights, then to cut things and to open lids. ढक्कन को खोलने में भी हम उसका यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज गिवन द एग्जाम्पल ऑफ सीसो. सीसो इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लीवर. फोर्थ पिक्चर आपको दिख रहा है सीजर के नीचे. तो सीजर्स के नीचे जो आपको पिक्चर दिख रहा है वो कैसा है? सीसो का पिक्चर है. जब आप बैठते हो तो एक ऊपर जाता है, एक नीचे आता है ना. दिस आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सीसो. नेक्स्ट वन इज गिवन व्हील बैरो, जिसमें आप कचरा, मिट्टी और
थोड़ा बहुत जो आपके घर में कुछ काम हो, आप इसको गार्डन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, घास को भर के बाहर फेंकने में. दिस इज ए व्हील बैरो. देन नेक्स्ट वन इज गिवन टोंग्स. टोंग्स क्या होते हैं? एक तरह के चिमटे ही होते हैं जिसको हम रोटी सेकने में भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट आइस को पकड़ने में भी, आइस क्यूब्स को पकड़ने में भी, छोटे छोटे जो आइस क्यूब्स होते हैं उनको पकड़ने में भी इसका यूज़ करते हैं. तो ये दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ lever. Here are also some examples of lever. You can see first picture, fire और ice tong, है ना. अभी आपको टोंग बताया था मैंने किस लिए होता है. या तो आप रोटी बनाते हो तब उसका यूज़ करते हो चिमटे का, और या फिर यू आर यूजिंग ऑन फायर जब आप उसको चेंज करना हो, या कोयले जब आप जला रहे हैं, then you are using this tong. You are also you can also say this is a ice tong. I have told you to pick up the ice cubes. Next one is given boat paddle. आपको बोट चलानी है तो आपको पानी को चीर के आगे निकलना है. That is also an example of lever. स्टेपलर. स्टेपलर क्या करता है आपको पता है? कट करके पेपर के अंदर चला जाता है, छेद करके. देन दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लीवर. ब्रूम जो झाड़ू होता है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लीवर. हैमर. हैमर हथौड़ा जो होता है, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लीवर. फिशिंग रॉड, जब आप फिश पुल करते हो, जब फिश कैच करने जाते हो तो क्या होता है, इसके हुक में वो अटक जाती है फिश और फिर आप उसको ऊपर खींच लेते हो. दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लीवर. फिश रॉड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लीवर. नेक्स्ट वन इज गिवन ए ट्यूजर और फॉर्सेप. जो चिमटी होती है छोटी सी, है ना, फॉर्सेप जो होता है उसको आप यूज़ करते हो बारीक से बारीक नग या कुछ भी बारीक से बारीक चीज़ों को पकड़ने में. व्हेन यू आर डूइंग डिसेक्शन ऑल्सो, देन ऑल्सो यू आर यूजिंग दिस forceps. These are the various examples of lever. So next one we will read about a pulley. So what is a pulley? A pulley is made from a wheel and a rope. जो पुली होती है वो किससे बनी हुई होती है? एक व्हील से बनी हुई होती है. व्हील आपको पता है क्या होता है? व्हील इज ए, जो पहिया होता है उसको बोलते हैं व्हील, और रोप रस्सी को बोलते हैं. यू हैव सीन, फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि जब कुएं में से पानी खींचते हैं तो किसका यूज़ करते हैं? व्हील का यूज़ करते हैं ना. उस पर एक लोहे का छोटा सा या बड़ा चक्र जैसा लगा हुआ होता है, फिर उस पर रस्सी डालकर आप उसको ऊपर खींचते हो. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हील. व्हील इज यूज्ड टू लिफ्ट थिंग्स इजीली. जो व्हील्स होते हैं उससे जो सामान होता है उसको आसानी से आप उठा सकते हो, है ना, रोप की मदद से. अगर वो नीचे है तो आप उसको खींचोगे तो वो ऊपर तक पहुंच जाएगा. सो this is the example given in your textbook that villagers use pulleys to draw water from wells. जो गांव में जो लोग होते, अब वहाँ पर तो पानी नलों से तो आता नहीं है, बहुत कम ऐसा होता होगा कि नल होते होंगे गांव में. छोटे छोटे जो गांव होते हैं, देयर आर मैनी वेल्स, बहुत सारे कुएं होते हैं गांव में. सो द विलेजर्स लिविंग, विलेजर्स क्या होते हैं? जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं उनको बोलते हैं विलेजर्स. सो दिस विलेजर्स यूज पुलीज. व्हाट इज पुली? इट इज मेड फ्रॉम व्हील एंड रोप. सो दिस विलेजर्स यूज पुलीज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स. कुएं में से पानी को खींचने में जो विलेजर्स होते हैं वो इन पुलीज का यूज करते हैं. You know that what is pulley? Pulley is made from wheel and a rope. Here you can see, आपको दिख रहा है एक गोल सा, ये नीचे तो आपको दिख रहा है एक चक्र है, सॉरी कुआं है, नीचे वेल है, और जो बॉय है he is is drawing water from that well with the help of wheel and a rope. That is the example of pulley. आपको दिख रहा है ऊपर डंडे पर यहाँ पर एक छोटा सा व्हील या पहिए जैसा आपको दिख रहा है, और आपको दिख रहा है रोप उस पर डाला हुआ है. अब वो जो पहिया जो होता है गाड़ियों में भी कैसा होता है,
पहिया घूमता जाता है, गाड़ी आगे बढ़ती जाती है। वैसे ही इसमें होता है, बाइसिकल आप चलाते हो, आप पेडल मारते हो, और साइकिल जो है पहिए जो होते हैं घूमते जाते हैं, और गाड़ी आपकी जो बाइसिकल है वो आगे बढ़ती जाती है। वैसे ही इसमें होता है, जब आप रोप को जब आप खींचते हो तब क्या होता है, जो बाल्टी होती है पानी से भरी हुई, जो कुएं में से जब खींचते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होती है, ये पहिया जो होता है ऊपर का, ये घूमता जाता है, और जो पानी से भरी हुई बाल्टी, इट कम्स अप आउट ऑफ द वेल. ओके, so this is the example that to draw water from the wells is an example of pulley. Next example you can see here. आपको दिख रहा है ये मैन क्या कर रहा है, मैन रोप को खींच रहा है. ही इज अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस रोप. यू कैन सी द नेम्स आर रिटन हियर. दैट पुली, ऊपर आपको दिख रहा है जो गोल है ना ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं पुली, और जो वो उसके मैन के जो हाथ में है उसको हम बोलते हैं रोप. रोप मतलब तो आपको सबको पता है रस्सी होता है. यू कैन सी ऑन डाउनवर्ड्स, नीचे आपको दिख रहा है एक लोड. लोड क्या है, वजन है. तो टू लिफ्ट अप द वेट, वजन को उठाने में भी पुली का यूज करते हैं. जैसे कुएं में से पानी निकालने के लिए यूज करते हैं, देन यू आर ऑल्सो यूजिंग पुलीज टू लिफ्ट अप द वेट, वजन को उठाने में भी. अब वजन कैसे उठाएंगे, यू विल व्हेन यू विल पुल द रोप, द वेट विल कम अप, द लोड विल कम अप. आपको उसको अगर ऊपर पहुंचाना है, बिल्डिंग्स बन रही हैं तो आपने देखा होगा कैसे पहुंचाते हैं, रोप, पुली और रोप के थ्रू ही ऊपर पहुंचाते हैं. Here also you can see the example of pulley. क्या कर रहा है उसमें, ये उसमें he is pulling the load, है ना. पुली की हेल्प से जो वजन है उसको लिफ्ट कर रहा है, रोप को पुल कर रहा है, तो वो जो लोड है वो पुली की मदद से क्या होगा, ऊपर जाएगा. द ऑब्जेक्ट ए पुली लिफ्ट इज कॉल्ड द लोड. जिसको वो खींच रहा है ना, जिसको वो खींच रहा है उसको हम बोलते हैं लोड, है ना. ऊपर जो ऑब्जेक्ट जिसको वो ऊपर लेके जा रहा है, किस ऑब्जेक्ट को लेके जा रहा है, वजन को लेके जा रहा है, देन वी विल कॉल्ड इट लोड. Okay, so these are the various example of pulley. I hope you all have understood what is simple machines, what is a lever, and what is a pulley. In next class we will continue the next topic of this chapter. Thank you.